Hello students, welcome to Parishram School, standard number 6, your chapter number 15, Air Around Us. We have learnt in chapter number 9 that all living things require air. But have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on a clothesline sway. Pages of an open book begin flurrying when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter number 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftops. Have you ever played with a फिरकी 15.1 in figure? चैप्टर नंबर 15 में आप सब लोग चैप्टर नंबर 9 में है वो सीख गए कि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर. एयर की ज़रूरत है वो सबको होती है. विदाउट एयर हम एयर को देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं, और विदाउट एयर है वो लिविंग थिंग्स का रहना पॉसिबल नहीं है. हम जब हमारा फ़ैन ऑन करते हैं तब बुक है वो उसके पेज है वो ऐसे फ्लटिंग करते हैं. तो वो किस वजह से होता है? पवन है, जो फ़ैन होता है वो हवा है वो फेंकता है, इसलिए. देन यू सेपरेटेड द सैंड एंड सोडस्ट. सैंड एंड सोडस्ट आपको जब सेपरेट करनी हो तो आप चैप्टर नंबर 5 में विनोविंग वो पढ़ चुके हो. तो वो किसकी हेल्प से होता है? विथ द हेल्प ऑफ एयर. देन इन फिगर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी. आपने देखा होगा अगर हम मेले में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होती है. तो ये किस वजह से है वो घूमती है? तो एयर की वजह से है वो घूमती है. नाउ लेट अस मेक अ फिरकी of our own following the instructions shown in figure number 15.2. Hold the sticks of the firki and place in different direction in open area. Now move it a little back and forth. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes a firki rotate? Moving air, isn't it? एयर की वजह से वो फिरकी है वो रोटेट होती है. Have you seen a weathercock? It shows the direction in which the air is moving at the place. ये है वेदरकॉक. वेदरकॉक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा एयर है, ज़्यादा हवा है वो जाती होगी, उस डायरेक्शन में ये कॉक है वो घूमता है. नाउ इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्लोज योर फिस्ट. What do you have in it? Nothing. Try the following activity to find out. Now activity number 2. Take a empty glass bottle. It is really empty or does it have something inside? Turn it upside down. It's something inside it. Now हमें क्या लेना है? एक खाली बॉटल लेनी है, उसमें कुछ भरना नहीं है, ऐसे ही खाली होगी. जब हम अप डाउन ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4. 15.4 में जैसे फिगर है वो आपको दी गई है वैसे क्या करना है? You can see, देख सकते हो आप लोग, bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound. Can you now guess what was in the bottle? आपको क्या करना है? वो खाली बोतल को वो जो पानी के बकेट है उसके अंदर है वो डालनी है. फिर बोतल डू यू सी बबल्स कमिंग? अगर हम वो उल्टी करके वो खाली बोतल है उसे पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा? बबल है, द बबल इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटल. येस यू आर राइट, इट इज़ एयर. दैट वॉज द प्रेजेंस इन द बॉटल. वो क्या होगा? किसकी वजह से वो बबल्स आए? विथ द हेल्प ऑफ एयर. येस यू आर राइट, दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल. The bottle was not empty at all.
In fact, it was filled completely with air. Even when you turned it upside down, वो बॉटल है वो completely fill है किससे? एयर से. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inward position, as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air able to come out in the form of bubbles, and water fill up the empty space that the air has occupied. Water है जब हम ऐसे बोतल है वो उल्टी करके सीधा डालेंगे तो कुछ नहीं होगा. अगर हम थोड़ी स्पेस दे, वो बोतल को थोड़ा टेढ़ा करें तो क्या होगा कि बबल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द बकेट. तो वो जो वाटर की जगह है वो एयर ने ऑक्यूपाइड की होगी और एयर की जगह है वो वाटर ने ऑक्यूपाइड की होगी. नाउ दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर है वो जगह है, कोई भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. पूरी स्पेस है वो बॉटल है वो फिल करती है. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट. इट इज़ ट्रांसपेरेंट. एयर कौन सा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल. और एयर है वो, ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि एयर है वो जगह है वो ऑक्यूपाई करती है. Our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. Atmosphere हम किसे बोलेंगे? हमारे जो अर्थ है उसके बाहर सराउंडेड बाय अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. एयर का है वो लेयर है हमारी अर्थ के सराउंडेड, उसके आसपास. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स. और वो जो लेयर है वो एक्सटेंड होता है कितने? मैनी किलोमीटर्स तक, बहुत सारे किलोमीटर्स पर वो जो लेयर है वो फैला हुआ होता है. अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ से लेके हम वो किलोमीटर तक जाए, सम किलोमीटर्स तक हम जाए तो क्या होगा? इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. वो जो लेवल है वो डाउन टू द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ टू द मैनी किलोमीटर्स, वो जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. Why do you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains? What is the air made up of? एयर है वो किससे बनी होगी? और माउंटेनर्स है वो ऑक्सीजन का बोतल लेके क्यों ऊपर जाते हैं? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. 18th century में लोग क्या मानते थे? एयर है वो just one substance, एक सब्सटेंस है. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ रियली नॉट सो. एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि एयर है वो सब्सटेंस नहीं है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर क्या है? बहुत सारे गैसेस होते हैं, उसका मिक्सचर है. व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज इट? विच टाइप ऑफ मिक्सचर है? Let us find out about some of the major components of the mixture one by one. वाटर है वो कौन कौन से मिक्सचर उसमें है, कौन कौन से सब्सटेंस के मिक्सचर के हिसाब से वो बनी है, वो मिक्सचर है वो हमें उसके सब्सटेंस एक एक करके देखने हैं. फर्स्ट इज वाटर वेपर. We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appears on the cooled surface. वाटर वेपर आप सबको पता है वाटर वेपर क्या है, राइट? अब वी ऑल्सो सो दैट, क्या देखा है हमने? व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ कूल सरफेस. एयर है वो कूल ठंडी सरफेस के कॉन्टैक्ट में जब आती है, इट कंडेंस, वो है वो ठंडी होती है, एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कोल्डेड सरफेस. और वो जो कोल्ड सरफेस होती है उसमें हम वाटर ड्रॉपलेट है उसे देख सकते हैं. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. वो जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर की जो प्रेजेंस है इज़ इम्पॉर्टेंट. किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? वाटर साइकिल इन नेचर. जो वाटर साइकिल होती है उसके लिए वो वाटर वेपर है वो ज़रूरी है. नाउ ऑक्सीजन. एक्टिविटी नंबर 3. In the presence of your teacher,
Fix 2 small candles of the same size in the middle of 2 shows container. हमें क्या करना है एक्टिविटी नंबर 3 में, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम साइज इन द मिडल ऑफ 2 शैलो कंटेनर्स। वो कंटेनर है उसमें वो जो कैंडल है उसे जला के रखनी है। लाइट द कैंडल्स एंड देन कवर ईच वन ऑफ देम विथ इन्वर्टेड ग्लास, वन मच टॉलर देन द अदर। फिर हमें क्या करना है कि एक ग्लास है वो थोड़ा बड़ा रहना है और दोनों जो कंटेनर है उसमें क्या करना है कि कैंडल है वो लाइट उसे करके रखनी है। फिर क्या करना है, इज शोन इन फिगर 15.6 एयर हैज़ ऑक्सीजन। आप देख सकते हो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द बर्निंग कैंडल्स एंड द वाटर लेवल। वाटर लेवल और बर्निंग कैंडल्स जो बर्न करनी है कैंडल उसमें क्या होगा वो आपको देखना है। डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गेट ऑफ। जब हम वो उसमें से एक ग्लास है वो इन्वर्ट करके वो कैंडल के ऊपर रखते हैं तब कैंडल का क्या होता है वो हमें देखना है। वो बर्न करती रहती है या फिर बर्न करना छोड़ देती है वो हमें देखना है। द बर्निंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ एयर, इजंट इट। फिर हमें क्या करना है, बर्निंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ एयर। जो कैंडल बर्न कर रही है वो किस वजह से होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन योर ऑब्जर्वेशन विद द 2 glasses ऑफ डिफरेंट हाइट्स, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस। ये डिफरेंट हाइट के हमने जो ग्लासेस लिए हैं, वाटर लेवल लिया है वो चेक करना है। कैंडल जब हम ग्लास है वो इन्वर्ट करके उसके ऊपर रखते हैं तो कैंडल है वो बर्न करती है या फिर बर्न करना छोड़ देती है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे मिलेंगे, तो बर्निंग कैन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो ही बर्निंग प्रोसेस है वो होती है। वी सी दैट वन कंपोनेंट्स, ये है वो आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। Now, one component of air is oxygen. Now, component of air में एक पार्ट कौन सा है, ऑक्सीजन गैस का। Now the amount of air and hence its oxygen component inside each glass in our experiment is limited. When most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blows out. अगर जितने टाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पे होगी उतने टाइम ही कैंडल है वो बर्न करेगी। जब तक ऑक्सीजन रहेगा कैंडल इज बर्निंग, बट ऑक्सीजन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो कैंडल है वो ब्लोज आउट, बर्न करना है वो छोड़ देगी। ऑल्सो वाटर राइज अप इन द ग्लास वंस द कैंडल ब्लोज आउट। जब वाटर का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, कब, व्हेन कैंडल blows out. However, this rise in water level should not be associated with the amount of oxygen utilized in burning of the candle. वाटर लेवल है वो कैसे अप हो जाएगा, ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइज होगा। ओके, नाउ ये एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर ऑक्सीजन है वो कोई भी सब्सटेंस हो उसे बर्न करने में ऑक्सीजन इज मस्ट। नाउ नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट अ मेजर पार्ट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। एक ऐसा सब्सटेंस है वो सपोर्ट नहीं करता है बर्न होने में, उसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, जो कैंडल है वो बर्न करने में सपोर्ट नहीं करता है, इज नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। पूरे एयर में 78% है वो नाइट्रोजन गैस है वो होता है। एयर क्या है, मिक्सचर है,
तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा। देन नाइट्रोजन आया तो नाइट्रोजन है वो नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स, इतनी स्पेस है वो कवर करता है। और नाइट्रोजन है वो सपोर्ट करता नहीं है किस में, बर्निंग, कोई भी चीज़ का बर्न करना हो तो उसमें नाइट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ऑक्सीजन है वो है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, in a closed room if there is some material that is burning you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. accumulating का मीनिंग होता है साथ होना। in a closed room if there is some material that is burning, अगर कोई चीज़ है वो बर्न करती हो, you may have felt suffocation, हमको है वो suffocation होता है। किस चीज़ से है वो सफोकेशन हमें होगा? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो इकट्ठा हुआ है, एक्यूमुलेटिंग मीन्स इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या होता है? सफोकेशन। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस, वो है वो छोटा भाग है वो एयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, स्मॉल कंपोनेंट। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, वो जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीदिंग प्रोसेस है, उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर लाते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर्स ऑन बर्निंग ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। जब प्लांट एनिमल मैटर है वो बर्निंग होता है, उसका बर्न होता है, वो जब जलता है तब वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा, पर उसके बाद जो धुआं दिखाई देता है उसमें क्या होता है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, और दूसरे थोड़े गैसेस। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो सफोकेशन है वो, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें सफोकेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? बाहर है वो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस में इनहेल और एक्सहेल, और हम जब एक्सहेल करते हैं तब उसमें से क्या बाहर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट एंड एनिमल्स है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर फेंकते हैं। देन डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, कोई भी फ्यूल का, पेट्रोल, डीजल, कोई भी फ्यूल ले लो, ऑयल है उसका फ्यूल है, वो जब बर्न होता है तो प्रोड्यूसेस स्मोक, स्मोक है वो प्रोड्यूस करता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। वो स्मोक है वो क्या है? फ्यू गैसेस, वो क्या है? वो कंटेन्स, उसमें क्या क्या होता है स्मोक में? थोड़े गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, एंड वो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, आप लोग सब इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनीज है वो देख सकते हो। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोसेस, हमारे नोज में वो गैसेस है हार्मफुल स्मोक, हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या है वो हमें तकलीफ होती है। बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, डस्ट पार्टिकल्स है वो ऑलवेज एयर में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4 है वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में है वो देखेंगे। थैंक यू।